Hi, hello everyone. Welcome to this video. And in this video, we are going to learn about the basics of personal finance. Why is it important? How to begin? This video is basically for someone who is just starting, who knows nothing about personal finance, or have some knowledge about it, but is finding it very difficult to understand the basics as to what to do, how to begin, what is stocks, what is mutual funds, how to go about it, what are the different sources of investment, be it real estate, be it gold, be it PPF, or any source that makes you scared as to what you should do about it. We would also learn about health insurance. We would also learn about term insurance. We would learn about lots and lots of things which are related to personal finance. And this video is basically more dedicated to probably medicos. So I had been doing lots of sessions previously as well for medicos, wherein we try to learn personal finance in a way that they can understand. So I'll just switch on the iPad. So yeah, so I'll begin this talk by two quotes. One is the first one, which I love, is never tell your next generation that uh, okay, whatever you earn is only for your kids. And the important thing, if you are into newly joined resident, or you are just intern, or you're maybe undergrad, you may have heard this quote by lots of senior doctors who say that whatever we earn, we never have time to enjoy it. So in the initial phase, it is a time that we use to acquire skill. This time, ultimately, whatever skill we earn helps us to earn money. But the problem is, in our curriculum, like I finished my MCH this year. My age is around somewhere around 29 right now. So imagine you are, by the time you finish your super specialty, probably you will be even 29 or even beyond this age. And if you're finishing your studies by 35 or say 36 or somewhere around that part, then you have to see for a job, then you have to settle, then you have to take care of family, and this thing is very difficult. And after that, once you start earning money, the time is not left. Time is not left. So what's the point of money if we don't have time to enjoy it? So the entire aim, is by using our time herein, we also learn how to manage our money so that we put our money to work, because your money will start working 24/7, irrespective of public holidays, irrespective of you not being well. It will keep on working, and we'll see the power of compounding today. Okay, and this money later we'll use to buy time for ourselves, which is called as retirement planning, or which is called as early financial freedom. People also call this as financial freedom. Okay. So basically we'll be using our money to buy time for ourselves. Of course, यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, हमारी फ्रेटर्निटी के साथ, कि वक्त नहीं होता किसी के पास. So you only live once, and it's better to enjoy also. So for that we need to learn personal finance. There is no escape to that. So the second thing that you need to understand is, you don't need to be a CA, you don't need to be a chart degree holder in personal finance or stock market or something like that. Even if you don't know the calculation of compound interest, you can still compound your wealth. This is important, and this is how simple we are going to make it in this session. We'll start right from the zero, and we'll try to build it up. Before that, I'll just give you my contact details if anyone wants to reach out to me. This is my mail ID, motiwalatanme0@gmail.com. You can find me on Twitter. I'm mostly active on Twitter. Instagram also is the same handle. Not very active there. And this is my YouTube. You've come here. Okay, so let us see why at all we need to invest. Why can't we just keep earning and then enjoy at the same time? So therein comes the concept of inflation. Inflation, which is in Hindi we call it as महंगाई की दर. तो महंगाई की दर किस रेट से बढ़ रही है? So just to understand that, value of 1 lakh monthly expense. Suppose you are spending 1 lakh rupees right now. So this 1 lakh
After 40 years, if you consider an inflation rate of around 6%, this expense which you are doing 1 lakh per month now will roughly be equal to 10.28 lakh rupees per month. So अगर वो पैसा आपने ऐसे जगह रख दिया जहाँ पे it never grows, then understand this thing that this expenditure becomes 10x. How will you maintain your lifestyle? How will you even live? आप बोलोगे सर 50-60 साल के बाद की बात कर रहे हो आप. I want to enjoy today. I want to live today. For that also we'll see what works. But say for retirement to have 10.28 lakh per month, if I want to keep some money in bank today in FD, it will roughly be around 14 CR, 14 crores. Imagine, take a pause and imagine, can you make so much amount of money by ethical practice? Or how many will be star doctors? Will everyone will be able to earn like this? But if I were to keep the money in bank, if for a monthly SIP, even if I'm getting a 8% in bank in FD, but which is not available right now, but this is a hypothetical example. Suppose you're getting 8% return if you start investing today, then monthly you will have to put 40,000 rupees. Again, horribly impossible for lots of people because most of the people are having loan. बहुत सारे लोग के पास इस ऐसे फैमिली से आ रहे हैं वो जहाँ पे या तो सैलरी इनकी खुद की कम है. बहुत सारे स्टेट्स में सैलरी इज अराउंड 70-80,000, तो उसमें से आप 40,000 कैसे बचा लोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? But if you say for an example, abhi this thing may sound very difficult, but I'll explain you this thing also. So suppose you're investing in Nifty and you are able to generate a return of 15%, and this everything we'll see what are these terms, CAGR, WAGR and all. So say for an example you are making average return of around 15%, then you will have to make only 4,500 rupees per month you have to invest. See the difference? 8% to 15% हुआ यहाँ पे, you just have to put 4,500. But if you are able to generate 17%, say 17% you are able to generate returns, then you just need to put 2,000 rupees. It's crazy, right? और अगर आपको आज कोई you're wearing some gold chain or some big iPhone and you wish to use that money and you can use it as a gift, and with that you are able to generate 17% return, then you just have to put 500 rupees per month. Insane, right? So with this we'll see this does give you an idea that if you need to have your retirement secure, or if you need to have some part wherein you need not worry about the money part, then you will have to put in the money, because you can see the difference of how big the time plays when you're investing. So without taking much time, now let us start the session today. And the mandatory disclaimer is I am not a SEBI certified advisor. The entire session is for knowledge purpose only. The stocks that I might discuss, I will try not to discuss in today's session. Probably in the upcoming videos we'll do that. But if I at all discuss anything, that will be only for knowledge purpose, not investment advice, and my opinion based on the market scenario. Okay. So for people who are starting new, let me tell you one thing. If you are there for quick money is like 1 साल, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में पैसा डबल हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए. Trust me, more often than not, this is a scam. The knowledge required to make that amount of money is huge, but even with knowledge you need luck. तो knowledge plus luck दोनों होगा तभी ऐसा possible है. Otherwise, if you are up there for making quick money, it will be a very high risk, and for most people it is a full-time job, which I don't want you guys to do, because you are doctors. Our country need lots of good doctors. So any scheme that says 25 दिन में पैसा डबल, प्लीज उस पेपर को फाड़ देना, वहीं पे फेंक देना. We would want to learn a low risk pathway to stupendous wealth. Why? Because I believe most of us people are coming from humble backgrounds. Most of us do not have very big risk appetite wherein we can blow up 5 lakh, 10 lakh जैसा capital. So I believe that our money is hard earned. So let us
work in a way that we are on a very low risk path and still create wealth for ourselves. Okay, first things first, there are two rules of investing. Okay, this thing, please write it down in your notes. Okay, let me tell you one thing, that if you are watching it just as a Ram Katha, don't do this. Please make notes, take down the important points, because this will help you later. And when you write notes, your mind will also get active and you will be able to understand better. So the two rules of investing, ये कभी नहीं भूलना है हमने. Trust me, I'll tell you later that how crypto was breaking one of these rules. तो हमने क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट नहीं किया. So two rules of investing. Rule number one is do not lose your capital. Now what does this mean? It means that if you are investing say 1 lakh rupees or 2 lakh rupees right now or 50,000 rupees, you are not supposed to blow that capital up. You're not supposed to make it zero. So we are not going to do anything, any instrument, any financial advice or any financial pathway wherein we can blow up the capital. Okay, rule number one is this. What is the rule number two? Rule number two says that do not forget rule number one. So we have just one rule of investing. So the second rule says, do, again, this is not my thing. Warren Buffett कहते हैं. I am a big follower of Warren Buffett. I enjoy what he says. So it's his saying, not mine. So do not lose capital. If you don't know Warren Buffett, please Google it. He is among one of the top 10 richest person in the world. He has made a tremendous amount of wealth by investing. So if he can do it, we can take inspiration from him. We can learn from him. Most of the methodology that I discuss has lots and lots of learnings from him, and you will see a lot of things that is imbibed from there. So I never say whatever I am telling you or sharing is my own thing. I have learned it from different sources, and I'm just sharing it in a way so that medicos can find it easy to understand. Okay, I am not a guru. So this rule we cannot forget anywhere. If this rule is getting broken, we won't compromise on this. Is this clear? Moving on to the next thing, what is my philosophy of investment? So my philosophy, usually I say this often, and this is quoted, it has preliminary derived from what Warren Buffett has taught. His teachings are really valuable. If you want to read, you can read his letters to shareholders. It's there on the Berkshire Hathaway. It's his company. So you can go out to the website, you can download. Those are available for free, letters to shareholders by Warren Buffett. You can read those things. It is very insightful. Then we have one more book which Warren Buffett had read at that time, which is called as Intelligent Investors, which is by Benjamin Graham. But trust me, आज अगर आप जाके उठा दोगे उस बुक को, तो it's very difficult to understand. ठीक है, तो इट इज लाइक धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को सीखेंगे. एक बार थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा. आफ्टर दैट यू रीड दिस बुक, स्पेशली द चैप्टर 8 ऑफ इट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम वहाँ से भी यूज करेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड रीड. बट लेट अस गेट सम बेसिक्स राइट फॉर अस. नेक्स्ट थिंग, आई डोंट से दैट कोई फिलोसॉफी गलत है. कोई बोलता है आज कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, इट्स वेरी गुड. लेकिन हम ये कहते हैं कि आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग दैट इज वर्क फॉर मी, which I am following. You may say कि मेरे लिए XYZ technique work करती है. Please do it. There is no harm about it. Okay. So follow any principle that you understand. Nothing is wrong in the market, provided that you are making money out of it and you're not losing mental peace. So two things are important. One is not losing mental peace. कि अगर आज मैं से कोई पेशेंट को रिससिटेट कर रहा हूँ इमरजेंसी में, मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आज उस स्टॉक का क्या हुआ, क्या स्क्वायर किया नहीं किया, पोजीशन मैंने या उस ऑप्शन को लिया था उसका क्या हुआ. सो प्लीज, peace of mind is very important so that you can carry out your practice in a very good way. And second thing is, you're making money. If you are doing something wherein you're not making money, please leave it. No point. ठीक है. This is a meme that I used in lots of talks. So I won't be teaching trading today or later. I have learned a bit basics only, but I feel कि ज़रूरत नहीं पड़ती. कभी मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं. थोड़ा बहुत चार्ट्स वगैरह देखना सीखा है.
जितना मुझे काम आता है वो चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ, बट इवन इफ यू डोंट नो ट्रेडिंग, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू चार्ट्स, इफ यू डोंट नो कि सुबह खरीदा शाम को बेचा, नो नीड। द मेथड दैट वी लर्न, वी आर वेरी श्योर कि आप उसमें अगर महीने में एक बार भी टाइम निकाल लेते हैं तो यू विल स्टिल बी गुड, यू स्टिल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। नाउ द फंडामेंटल क्वेश्चन कम्स इन कि सर आपने बोला कि हमें रिटायर होना है, ये सब करना है, you said that for that investing is important. Now I'll tell you a concept wherein how different rates are interpreted, what are how to use those rates। जैसे कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट कोई सजेस्ट कर रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो एंड XYZ अमाउंट ऑफ रेट मिल रहा है वहाँ पे, सो शुड यू इन्वेस्ट इन दैट और नॉट? लेट अस सी। Okay, so the rate of inflation right now is somewhere the average it goes around 6% plus minus 2%. This is again on a higher side. You may reason that 6% नहीं होता हमेशा, yeah that's right, but this is for a rough rule कि long period में it is somewhere around 6% plus minus 2%. The next thing that we want to see is inflation rate. We have seen this is old one. Right now it's well below this, so please scratch this thing. I forgot to change it. So the bank saving account that you are doing is probably providing around 3.5% to 5% only. You see, if you are effectively keeping your money in bank saving account, 6% is the inflation and your bank is giving you 3.5%, provided it is getting you 3.5%. For most of the bigger banks it is just providing you 3.5%. So if you're getting that return, then probably your money is depreciating by 1%. आप इस बात को समझिए कि आपका पैसा 1% से 1.5% से कम होता जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आपका जो परचेजिंग पावर आगे अगर आपको 10 लाख चाहिए तो आप उतना नहीं जनरेट कर पाएंगे, बिकॉज योर कैपिटल इज डिप्रिशिएटिंग, तो यू विल नेवर हैव दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज नीडेड। नेक्स्ट थिंग, एफडी की रेट आज की रेट में हमें 5 से 6% की मिलती है। प्रोबेबली अभी जो हायर साइड में अगर 2.5 साल की या 3 साल की एफडी करते हैं तो उसमें 7% के आसपास तक जाता है। मोस्ट बैंक 6.6% इसके अराउंड ही जा रहा है, ठीक है। सीनियर सिटीजन नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन। सो इफ यू सी, अगर आप 6% के आसपास अगर आपको एफडी रिटर्न मिलता है, अभी रेट कट होने चालू हो जाएंगे थोड़े समय बाद मे बी, तो यू विल सी दैट 6% यहाँ पे, 6% इन्फ्लेशन में। सो बेसिकली अगेन यू आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल। तो अगर मैं एफडी में भी रखता हूं तो इट इज वेरी सेफ। आई एम नॉट सेइंग कि हम एफडी नहीं करने वाले, प्लीज माइंड दिस थिंग। हम ये नहीं बोल रहे कि एफडी नहीं करेंगे, विल मिक्स इट अप। कैसे यूज करना है उसको हम सीखेंगे, बट सिर्फ एफडी में रखना इज नॉट द थिंग। अब आप बोलोगे कि पहले वाले जमाने वाले लोग तो एफडी करते थे, उनका बहुत अच्छा रिटर्न था, एंड व्हाई आर यू सेइंग लाइक दिस? लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, पहले एफडी का रेट 8% से ऊपर था, इन्फ्लेशन का रेट कम था, सो इफेक्टिवली उनका पैसा ग्रो कर रहा था। दैट वाई दैट इट वाज अ गुड डील फॉर देम, हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। बट इट इज नॉट द सेम सिनेरियो विद अस, ओके। एंड अगेन एफडी कम्स विद अ लॉक इन पीरियड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि आप अगर प्रीमेच्योरली एफडी ब्रेक करते हैं तो 1% की पेनल्टी लग जाती है उसके ऊपर, राइट? सो नेक्स्ट थिंग विल सी पीपीएफ। PPF stands for Public Provident Fund. Many people would have been having their investment already in this, पता भी नहीं होगा क्या है, लेकिन this is what it is. Roughly इसमें जो रिटर्न मिलता है, हमें मिलता है 7.2 to 7.5% रिटर्न। Again, this thing is very much risk-free kind of return, but the lock-in period is very long, 7 साल, 15 साल. So there are conditions wherein you can take out X amount of money after say 6-7 years, but then you can't withdraw the full amount of money. And अगर मैं कह रहा हूँ कि 7-7.5% मिल रहा है तो रफली आप 7.2% पे आप 10 साल में डबल हो गया कैपिटल। अभी हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं कि कितने साल में पैसा डबल होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द एंटायर मनी इज पुट इन द बिगिनिंग। तो इसमें ये नहीं है कि मैं मतलब से 1 लाख को 2 लाख करना है तो मेरे को 15 साल लग रहे हैं या 10 ईयर्स लग रहे हैं से इसके थ्रू, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर 10 ईयर लग रहे हैं तो मुझे t इज इक्वल टू 0 पे 1 लाख लगाना है। इट इज नॉट दैट कि मैं थोड़ा 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 करके लगा रहा हूँ और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा क्यूबरसम लगता है मुझे इसमें। सिमिलरली जो मार्केट है उसके दो चीजें हैं, अभी हम देखेंगे निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है थोड़ी देर बाद इन शॉर्ट वाइल। बट देन अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स, निफ्टी और सेंसेक्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैव बीन अराउंड 14 to 16%, इफ यू आर एबल टू जनरेट दैट, देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कांसेप्ट ऑफ डबलिंग टाइम फर्स्ट।
तो अगर डबलिंग टाइम हमें निकालना है कितने साल में पैसा डबल होगा, ठीक है, तो इट इज गिवन बाय रूल विच इज गिवन बाय 72 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इफ n इज द रेट ऑफ रिटर्न देन टेल मी 72 डिवाइडेड बाय 7.2, सो वी सेड इट इज अराउंड 10 years, ठीक है। नाउ वी सेड कि 3.5% कैलकुलेट, stop the video and calculate कितनी, सॉरी 3.5 years नहीं 3.5%, तो 3.5% में कितने साल में पैसा डबल होने वाला है, लेट्स कैलकुलेट दैट, ओके। कम हियर, आई विल शो यू व्हाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, सी बैंक में अगर आपको 3.5% रिटर्न मिलता है तो आपको 2 टाइम्स होने के लिए 20 साल लग जाते हैं, 20 years just to double your money. And this is why अगर हम अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रख कर बैठ जाते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, then we are becoming fools. Why fools या why idiots or why whatever you want to call it? Why? Because we don't have financial literacy. It was never there in our curriculum. Now let us see if it was there in our curriculum and we would have learned how to invest. And if you are able to generate somewhere around 14%, again I am not saying कि 14% is very easy return या हमेशा हम हर कोई बना लेगा, but then suppose we are able to generate 40% return, then 2x करने के लिए हमको कितना साल लगेगा, 5 साल। Now what does it mean if you are doubling in 5 years? It means in 10 years will be 4x, in 15 years will be 8x, in 20 years will be 16x. So a person who is smart is becoming 16x in 20 years. A person who is not smart is becoming just 2x in 20 years. So choice is yours. What do you want? आपको चाहिए कि आप 20 साल में सिर्फ 2 टाइम्स हो पाए अपने कैपिटल को, या 16 टाइम्स कर लें? कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं आज, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जैसे आइंस्टाइन का एक कोट है, एंड ऐसा कहा जाता है, अब आई डोंट नो आइंस्टाइन ने बोला है या किसने बोला है, बट यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी कोट का बड़े आदमी का नाम लगा दो तो अपने आप उसका वजन बढ़ जाता है। सो इट इज सेड दैट कि आइंस्टाइन ने ये कहा है, एंड ही सेज दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर, द वन हु अंडरस्टैंड्स इट earns it, the one who doesn't pays it. Now what does this mean? ठीक है, तो एक स्मार्ट पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। एक स्मार्ट पर्सन वर्सेस अ नॉन स्मार्ट पर्सन अगेन। तो जो नॉन स्मार्ट पर्सन है वो क्या करता है कि लोन लेना चालू करता है, लोन लेता है, जैसे आज मुझे आईफोन लेना है, आज कौन सा आईफोन लॉन्च हुआ है, 15 Pro Max, से वो 40,000 का है, 30,000 का, सॉरी 1,40,000 या 1,30,000 का है, या अपर मॉडल शायद 2 लाख तक भी जाता होगा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रेट्स। तो अगर आपको वो लेना है, आपकी जेब में पैसे नहीं, तो आप क्या सोचते हो, ये तो मुझे ईएमआई में मिल रहा है, अगर मैं 30,000 की या 20,000 की या 15,000 की ईएमआई ले लूँ तो इट इज़ अ वाइस ऑप्शन। या आपको किसी ने आके बोला कि कार ले लो ब्रो, आपने तो मेडिकल रेसिडेंसी ज्वाइन की है, आप रेसिडेंट डॉक्टर हो, आपके समय से आप डॉक्टर साहब के पास कार नहीं है, ऐसा कैसे चल सकता है। बट मैंने क्या किया, मंथली पे करके उस कार की इंस्टॉलमेंट चुकाई। बट से आज अगर 1 ईयर पे उस कार की वैल्यू सपोज 10 लाख है, तो 5 साल बाद क्या वो 10 लाख होगी? टेल मी, क्या वो 10 लाख होगी 5 साल बाद? नो, राइट। वो 10 लाख से कम हो जाएगी, शायद वो 5 साल में तो आधी हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी, 5 लाख से भी कम हो जाएगी, 4 लाख की हो जाएगी। बट अगर आप वही पैसा SIP में करते हो, EMI की जगह आप वो SIP करते हो, तो क्या होगा कि अगर वो आपने 10 लाख की SIP की, तो 5 साल में कितना हो जाएगा वो? 5 साल में कितना हो जाएगा? एनीवन? हमने यहाँ पे देखा था ना, 5 साल में रफली 2x हो रहा था, अगर 14% जनरेट किया, तो 10 लाख आपके 20 लाख हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मीम, अगेन दिस मीम्स आर टेकन फ्रॉम इंटरनेट, पीपल हैड फॉरवर्डेड मी या कहीं और ऐसे सोर्सेस से। सो प्लीज, जिसका भी ये क्रिएटिविटी है, द क्रेडिट गोज टू द ओनर ओनली, आई डोंट ओन दिस मीम्स। तो ये काफ़ी फेमस सेइंग है कि बाबू मोशाय जो सैलरी है जो वो सेविंग्स में जानी चाहिए, EMI में नहीं, ठीक है। हम उसको और अपग्रेड करते हैं कि SIP में जानी चाहिए, EMI में नहीं। हमने SIP क्या होता है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। कुछ भी समझ नहीं आता, यू कैन always tell me, and we can first discuss this thing and we'll simplify it everything. So SIP को हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली इसमें
सपोज हम इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ, चलो एसआईपी हमारा आ जाएगा आगे जाके। सो हमने क्या करना है, हर मंथली जो पैसा आता है उसको हमने म्यूचुअल फंड की तरफ डाइवर्ट करना है या कहीं पे इन्वेस्ट करना है, सो दैट इट इज एप्रिशिएटिंग असेट। अगर आप फैमिली आप पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और आप बड़े हो जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग, फैमिली गेट्स मनी फ्रॉम यू, सो आप क्या हुए, एप्रिशिएटिंग एसेट। लेकिन आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया जिसकी वैल्यू घटती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। सो बिकम अ एप्रिशिएटिंग एसेट फॉर योर फैमिली, नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। Okay, so what is the right time to start investing? Sir, I am 25, I am 35, I am 45, I am 20, I am 18. So the Warren Buffett साहब कहते हैं कि the right time to start investing was yesterday, and the second best time to start investing was today, is today, राइट। सो हमने आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि हम लेट हो गए, मैंने 23 ईयर्स पे स्टार्ट की है इन्वेस्टिंग की जर्नी, दिस डजेंट मीन कि मैं 23 ईयर्स लेट था, इट जस्ट मीन्स दैट आई हैव स्टार्टेड एट 23 ईयर्स। कोई अगर 18 का है, जल्दी स्टार्ट करता है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ सो दैट यू कैन कंपाउंड योर वेल्थ इन अ वेरी गुड मैनर। और हम ये देखते हैं क्या इफेक्ट आता है इसका। सो मेक टाइम or age your friends if you start early in your life. See, this is the formula of compounding. I said ना शुरू में, लेक्चर के शुरुआत में, कि अगर आपको compounding का formula नहीं भी आता तो भी you will make a very good amount of money out of this. How is this? This is A is the final amount, P is the principal initial capital, and then plus one bracket plus R by N, where R is the rate of return and N is number of times the interest applied per time period, which is usually annual, and then the whole bracket, then n into t. N is the number of times which is the interest applied, and t is number of time periods elapsed. ये फॉर्मूला बकवास है। क्यों बकवास है? You don't need to remember this thing. You just need to remember is anything that comes as an exponential thing, it has the maximum weightage. इतना मैथ्स तो आता है, इतना मैथ्स तो आता है बायो वालों को भी, कि किसी भी जगह अगर पावर में आ रहा है कोई चीज तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो t इज इक्वल टू अगर टाइम है तो सबसे बड़ा इफेक्ट कंपाउंडिंग में किसका होने वाला है? से टाइम, ठीक है। तो द वन हु स्टार्ट्स अर्ली will have a big advantage. So I'll give you an example which I keep on quoting. So there are two people, okay, person A, person B. Person A starts investing at the age of 18 years. 18 years पे उसका कोई गोवा ट्रिप थी, उसने उसको स्किप किया, and keeps on investing till 26 years. हर साल कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी, 50,000 लगा रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, से 50,000 लगा रहा है, ठीक है। I'll write this for you. So let me add a page here. Okay. So let us try and understand why starting early is important. There are two people, person A and person B. Okay, so person A starts investing at the age of 18 years. शायद उसका गोवा का ट्रिप था या कहीं और के पैसे थे, वो उसने इन्वेस्ट किए, एंड उसने कितने लगाए? 50,000 पर ईयर। एंड कितने साल के लिए किया? इट इज अप टू 26 ईयर्स, ठीक है। एंड सपोज दैट पर्सन इज एबल टू गेट 12%, but at the age of 26 years he felt that I want to enjoy my life, I don't want to do any further investment, but उसने क्या किया कि वो पैसे निकाले नहीं, ठीक है। So this person is invested for 8 years. Now person B is there who realized at the age of 26 years that okay, this is important, I need to start investing. उसने invest करना start किया। Again, this person also invests 50,000 per year, and for how long he is doing this? For up to 60 years, ठीक है। So now this person invested for 34 years and this person invested for 8 years but did not take out the money. So what do you think, who at the age of 60 years will have more amount of money, provided कि दोनों को 12% return मिला है? Take a pause, think about it. So to our superficial brain it appears like person B may be having the more amount of money because उसने 34 years किया है, but if you calculate in Excel, person A will be having 2x roughly the amount of money of that of B. Now this tells us the importance of starting investing journey early on in life. तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, कैपिटल छोटा है उससे मैटर नहीं करता, you will have a bigger wealth creation journey. Why? We understood? पावर में टी है, ठीक है। So after understanding all these things, let us take a look at
व्हाट इज स्टॉक मार्केट, है ना, व्हाट इज बीएसई, व्हाट इज एनएसई, तब से आप बोल रहे हो सेंसेक्स निफ्टी, क्या है ये बकवास। सो देर आर बेसिकली और ब्रॉडली टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री, ठीक है। वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड दिस वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये दोनों क्या बोला है? सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ top 30 companies of the country, and this Nifty or NSE, National Stock Exchange, consists of top 50. Now think about it, if this is top 50 and this is top 30, so क्या यहाँ के top 30 सेम होंगे या नहीं होंगे दोनों के? ऑब्वियसली टॉप 13 के सेम होंगे, ठीक है। और प्लस जो है यहाँ पे 20 कंपनीज और आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज एनएससी। अब इनको कैसे रैंकिंग दी हमने कि क्या इनका कंपनी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? सो इफ समवन ऑफ यू हु वुड हैव बीन लिसनिंग थोड़ा बहुत यहाँ हुआ, तो आपने सुना होगा रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ये है वो। सो एक टर्म बार बार यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ व्हाट इट मीन्स इज market cap is nothing but equal to number of shares into price of one share, number of share into price of one share. So for example, let us take this, ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो देयर इज वन कंपनी जिसके 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की क्या कीमत कितनी है? 10 रुपए, 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है। एंड देयर इज अनदर कंपनी विच हैज ओनली 100 शेयर्स। अगेन दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट से उसके पास 100 शेयर्स हैं और उनकी प्राइस 100 है। तो आप जब शेयर मार्केट में शेयर प्राइस देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि 100 वाली कंपनी 10 वाली से बड़ी है, बट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? 10 लाख। इसका कितना हो जाएगा? 10,000, राइट। सो 10,000 वाली कंपनी इज छोटू कंपनी और 10 लाख इज द बड़ा कंपनी। सो नेवर एवर जज अ कंपनी बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस जस्ट शोज कि उस समय उसकी डिमांड सप्लाई क्या है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज अ मार्केट कैप दैट डिसाइड्स कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस टॉप 30 कंपनीज आर अरेंज्ड एंड दिस इज हाउ टॉप 50 कंपनीज आर अरेंज्ड। Now you will say कि what is this Sensex, what is this Nifty? The thing is, अगर आप किसी कंपनी को मैं बोलूँ कि आज उसका शेयर प्राइस 10 लाख करोड़ प्लस 1 लाख प्लस इतना थाउजेंड इतना XYZ, अगर मैं उसको देखो बोलना भी मुश्किल हो रहा है, तो हाउ विल यू ट्रैक द प्राइस ऑफ दैट कंपनी? है उनको कैसे ट्रैक करोगे उतना बड़ा मल्टीपल? तो उसके लिए एक इनका इंडेक्स निकाल लिया जाता है। तो जो बीएससी का इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड एज सेंसेक्स, और जो एनएससी का इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी। जैसे आप पीएसएम में बहुत सारे इंडेक्सेस निकालते रहते हैं ना, कि इन्फेक्टिविटी रेट क्या है या पैरासाइट इन्फेस्टेशन रेट क्या है, ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस हैं उसमें भी। तो यहाँ पे भी इसका इंडेक्स निकाल लिया। तो बीएससी का इंडेक्स इज कॉल्ड एज सेंसेक्स, एनएससी का इंडेक्स इज कॉल्ड एज निफ्टी, और प्यार से कहा जाता है निफ्टी 50। वाई? बिकॉज इट इज द टॉप 50 कंपनीज इन द थिंग। अब यहां से एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। सो देखो इंडेक्स दो हो गए हमारे, कौन से? एक बीएससी इंडेक्स हो गया और एक एनएससी इंडेक्स हो गया। नाउ व्हाट इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग? लेट अस अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। उससे पहले हमने जब ये सीख लिया, ठीक है, तो एक चीज समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ना दो चीज होती है। एक होता है, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड जो कि कोई पर्सन मैनेज करता है, और एक होता है पैसिव या इंडेक्स फंड, सॉरी, सो पैसिव और इंडेक्स फंड। अब इसमें क्या हुआ, वॉरेन बफेट की एक बेट लगी थी। वॉरेन बफेट ने बोला कि आपको कैसे पता चलेगा? तो ये एक्टिव फंड मैनेजर बोलते हैं कि वी, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि टॉप 50 कंपनीज हैं, तो इसमें से कुछ कंपनीज होंगी जो लॉस भी बना रही होंगी, से 10 कंपनीज लॉस मेकिंग है,
ठीक है, तो ये एक्टिव फंड मैनेजर आके कह रहे हैं कि मैं सिर्फ विनर विनर पिक करूंगा, मैं लूजर्स को पिक नहीं करूंगा, और उससे क्या होगा कि मेरा रिटर्न जो है, सो एवरेज रिटर्न ऑफ निफ्टी ओवर द लास्ट 30 years हैज बीन समवेयर अराउंड 12 to 14%। एंड ये कहते हैं कि अगर हम ये लूजर्स को हटा दें तो शायद 16-17 पहुंच जाएंगे। वॉरेन बफेट ने बोला कि आप इसका एक कमीशन भी लेते हो एक्टिव फंड्स में, दैट इज कॉल्ड एज, हम ये सब सीखेंगे जब म्यूचुअल फंड की क्लास पहुंचेंगे तब, तो इसमें कमीशन लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो आप एक्सपेंस रेशियो भी ले रहे हो। फिर पैसिव फंड क्या हो रहा है, वो ये बोलते हैं कि अब जैसे ना इतनी सारी कंपनी जो टॉप 30 जो अरेंज है या टॉप 50 कंपनीज हैं, तो इन टॉप 50 कंपनीज को जब हम अरेंज करते हैं तो बस इसी जिस प्रोपोर्शन में से आज की डेट में अगर रिलायंस इसमें 30% है, HDFC इसमें 20% है, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, फिर उसमें से ITC है, इन्फोसिस है, ठीक है, देन वी हैव से XYZ कंपनीज, आप किसी का भी नाम लेते जाइए और यहाँ पे अरेंज करते जाइए उन कंपनीज को। ठीक है, तो जो भी कंपनीज अगर अरेंज कर रहे हैं हम जिस प्रपोर्शन में है, उन्हीं प्रपोर्शन में ये क्या करते हैं, आपसे पैसा लिया, मेरे से पैसा लिया, ऐसे लाखों लोगों से पैसा लिया, सपोज उनके पास 1 लाख करोड़ आ गए, कितने आ गए, 1 लाख करोड़ या 1,000 करोड़ भी आ गए, 1K करोड़, तो उस पैसे को ये इस प्रपोर्शन में ही इन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ओवरऑल जो रिटर्न आता है ये रफली इक्वल टू आ जाता है इंडेक्स का रिटर्न। तो वॉरेन बफेट ने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विनर 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 ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो आप क्या करें कि आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड को बाई कर लीजिए। तो एक्टिव फंड वालों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम बेटर हैं। तो इस $1 मिलियन बेट में वॉरेन बफेट इनसे 10 साल बाद जाके जीत गए थे ये बेट। एंड अभी भी जो अगर आप वैल्यू रिसर्च पे जाके देखते हैं तो जो डेटा है हमारे मार्केट का भी, इंडेक्स इज अमंग द टॉप 33% फंड्स। अब आप उसमें से बोलेंगे कि टॉप 33 में है तो मैं शुरू वाले 33 में क्यों ना जाऊं, 1% में क्यों ना जाऊं, 1 to 10 वाले में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन सा फंड है जो पहले आउट परफॉर्म कर रहा था इंडेक्स को और वो आगे भी सेम वे में करता जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, समवन हु इज अ नो नथिंग इन्वेस्टर, समवन हु डजंट नो एनीथिंग, तो वो क्या कर सकता है कि ये इंडेक्स फंड को ले सकता है, क्योंकि उसमें आपको ट्रैक नहीं करना है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड जिस रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है आप उस रेट से ग्रो करते रहेंगे। तो वॉरेन बफेट ने भी यही बोला था, ये उनकी फेमस बेट थी। फिर आप बोलेंगे कि इसमें अगर मार्केट क्रैश हो गया तो मैंने हाई पे ले लिया तो लो पे ले लिया तो रिस्क मिटिगेशन कैसे करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला रिस्क मिटिगेशन क्या है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहला रिस्क मिटिगेशन का तरीका है कि वी आर नॉट बाइंग अ सिंगल स्टॉक, वी आर बाइंग अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो सिंगल कंपनी के फेल होने के चांसेस शायद ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक पूरा के पूरा बकेट फेल हो जाए ये इसके चांसेस बहुत कम है। नाउ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन की ये जो टॉप 50 कंपनीज हैं ये ऑलमोस्ट 90% प्लस ऑफ द GDP ये बनाती हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी 50 कंपनियां एक साथ फेल हो जाएंगी तो हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। नाउ अगर हमारा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा तो आपने जो पैसा बैंक में रखा है वो पैसा बैंक वाले क्या करते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनी को लोन देते हैं, वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उससे ही ये बैंक ग्रो करते हैं। तो आपका पैसा भी वहां पे फंस जाएगा अगर ये सारी की सारी कंपनीज एक साथ डूब जाएंगी तो। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड वे ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क इज SIP मोड। ना वो क्या भला है ये SIP का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी डेडिकेट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग अवर ब्रेन, ऑटोमेट कर दिया इस चीज को, सिस्टम होता है। तो जैन की 10th को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फेब की 10th को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्च अप्रैल हर मंथ की 10th को अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बहुत लोग आपको आगे बोलेंगे मैं SIP कर दूं, क्या SIP कर दूं, SIP कर दूं नहीं होता, SIP इज अ मेथड। तो मैं अगर आपको बोलूं कि एक स्क्वायर में आज आप रखो पैर, अगला स्क्वायर छोड़ना है, अगले में करना है, तो दिस इज अगेन दिस कैन बी सिस्टम, एक सिस्टम फॉर्म कर दिया, उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप बोलोगे क्या मैं हर 5 तारीख को कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्या हर महीने की 30 तारीख को कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली, आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो चाहे म्यूचुअल फंड में करो, दिस इज कॉल्ड एज SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इज दिस क्लियर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो इंडेक्स
में हम ये कहते हैं कि 12 to 14% ग्रोथ क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपका अगर इन्फ्लेशन 6% है, ठीक है, 6% के आसपास तो आपका इन्फ्लेशन ही है, इस रेट पे वो अगर अगर कंपनी किसी से लोन ले रही है तो क्या एक नॉमिनल ग्रोथ वो नहीं लाएगी जिसके ऊपर ये इन्फ्लेशन का ग्रोथ है, क्योंकि अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के बराबर वो रिटर्न लेके आएगी 6 या 7% का, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, कंपनी का पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है कि दे विल हैव टू फॉर्म एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न ओवर द रेट एट विच दे हैव बोरोड, एंड इसलिए कहते हैं कि दिस रेट, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू इनटू वेरी डेप्थ ऑफ दिस कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको सीखेंगे, बट देन रफली इस बेसिस पे वो 12 to 14% करते हैं, क्योंकि जितने पे वो बोरो किए हैं उसके ऊपर वो प्रॉफिट्स बनाएंगे, प्रॉफिट के बाद भी वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, अपने लैंड का बिल पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कैरी करेंगे, तो इतना रिटर्न तो बनाएंगे ही ना कि वो उस पे को भी, लोन को भी चुका सके, ये सब कर सके। तो इट रफली इज अराउंड अ रेट ऑफ अराउंड 12 to 14%। थर्ड सिनेरियो, आप बोलते हैं कि अगर वॉर हो जाए तो, न्यूक्लियर कंडीशन आ जाए, कोविड लाइक सिनेरियो वापस आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैं कहता हूँ कोविड जैसा सिनेरियो आएगा तो कोई ना कोई स्टॉक चेंज हो जाएगा उसमें, जैसे कि आज अगर रिलायंस स्टॉक में है तो हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल लाइक कंपनी आ जाएगी, अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो कोई बम बनाने वाली कंपनी आ जाएगी, फाइटर जेट्स वाली कंपनी आ जाएगी, जो इनको अप्लायंसेस सप्लाई कर रहे हैं वो वाली कंपनी आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वी आर बाइंग अ बास्केट, वी आर नॉट बाइंग अ सिंगल स्टॉक। तो जब हम बास्केट बाई करते हैं तो आप बास्केट का कंटेंट आप कुछ भी चेंज कर लो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारा लॉस होने लगेगा, एंड अगेन अगर ये बास्केट ग्रो करता जा रहा है तो यू विल आल्सो कीप ग्रोइंग। सो एक वॉरेन बफेट की बहुत फेमस कोट यहाँ पे आती है कि इफ यू बिलीव दैट योर नेक्स्ट जनरेशन विल लिव अ बेटर लाइफ देन योर जनरेशन, देन इंडेक्स फंड इज अ गुड थिंग फॉर यू। हाउ? कि अगर आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छा लाइफ जिएगी तो क्या होगा कि वो मोर ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ज़्यादा छुट्टियों में जा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इन कंपनीज, जो ये कंपनीज हैं, इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर इन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ती जाएगी। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हम ये क्या कह रहे हैं? तो हमने यही तो बास्केट खरीदा है, वी आर बेटिंग ऑन द जीडीपी। हम ये कह रहे हैं कि अवर नेक्स्ट जनरेशन विल लिव अ बेटर लाइफ। तो अगर वो बेटर लाइफ जिएंगे तो इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 से 14% से ये बढ़ता जाएगा। तो हम बिना दिमाग लगाए 12 से 14% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग से जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग तो आपका एक ऑलमोस्ट दिस इज काइंड ऑफ मनी जहां पे आप शॉर्ट पैसा बन जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगेन ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम पे नहीं बनता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है, इट इज नॉट अ लीनियर लाइन। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स इज क्लियर। तो हम कौन से इंडेक्स में पैसा लगाते हैं? निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है, क्योंकि उसमें 50 स्टॉक्स हैं तो उसमें ज़्यादा वाइड रिप्रेजेंटेशन है जीडीपी का। देन उसमें रिस्क मिटिगेशन कैसे करते हैं? हम एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट करते हैं, हम सिंगल स्टॉक नहीं बाई कर रहे हैं, हम एक बकेट ऑफ स्टॉक बाई कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 500 रुपीज, ठीक है। सॉरी, आई विल जस्ट टेक सम वाटर। अगेन मैं 500 रुपये से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे इंटर्न्स इस वीडियो को देखेंगे बाद में, या ऐसे लोग होंगे जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, पैसा लगाने से डर लगता है। तो अगर हम 500 रुपये से इन्वेस्ट करना चालू करते हैं और 12% पे अगर हम रिटर्न जनरेट कर ले रहे हैं, सो लेट अस लुक कि वो 10 साल में कितना हो जाएगा। 10 साल में दिस वुड बिकम, वी वुड हैव इन्वेस्टेड 60,000 एंड इट विल बिकम 1,12,000। ओके, रफली डबल हुआ। देन 15 ईयर्स में, इस पीरियड में हमने कितना पैसा लगाया? सिर्फ 30,000। बट लुक एट द मनी दैट यू आर गेटिंग, 2,37,000। तो क्या हुआ कि सिर्फ 30,000 आपने एक्स्ट्रा लगाया, लेकिन पहला जो कैपिटल था उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो आपका एड ऑन हो गया, दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम 2,37,000। 20 साल में, अगेन अगले 5 साल में हमने कितना लगाया? सिर्फ 30,000 एक्स्ट्रा, बट इस पे जनरेट कितना किया आपने? रफली अगेन 2 पॉइंट समथिंग आपने जनरेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, 2.1 के आसपास। अगेन अगले 5 साल में कितना किया? 30,000, बट इस पे रिटर्न कितना जनरेट कर लिया? रफली 4 लाख के आसपास। तो आप देखिए, आप इन्वेस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट ही कर रहे हैं, बट आपका जो रिटर्न है वो हर 5 साल के बाद एम्पलीफाई होता जा रहा है। एंड दिस इज वाई से कि इन्वेस्ट करने में, जल्दी स्टार्ट करने में कितना ज्यादा पैसा बन जाता है। अब आप बोलोगे कि 25 साल में पैसा बनेगा तो क्या होगा? अब आप देखो, एक कॉमन सेइंग है, जैसे मैं यहाँ पे 12,000 से कैलकुलेशन दिखाया, 12% से कैलकुलेशन दिखाया हुआ है फॉर अ 10,000 रुपीज थिंग, बट एक और सेइंग भी है कि 15,000
at 15% for 15 years becomes 1 CR. 15,000, 15%, 15 years, it becomes 1 CR. ठीक है, अगर 10,000 से देखना चाहते हो तो आप मोटा मोटी एक अराउंड 20 ईयर्स के आसपास में 1 CR के आसपास पहुंच जाओगे ना। 1 CR का जो टारगेट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बात है या बहुत छोटी बात है या वट एवर थिंग, बट आप ये देखो छोटे कैपिटल से आप धीरे धीरे करके एक बूंद बूंद करके आपने घड़ा बना दिया, इट हैज बिकम अ वेरी लार्ज अमाउंट। और अगर हम ये चीज कहीं और इन्वेस्ट करते रहे या ये पैसा हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो विल नेवर एवर बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ मनी इन आवर लाइफ। एंड दिस इज व्हाई इन्वेस्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पीपल हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स लाइक अस, कि हम अपने पैसे जो छोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं उसको हम इन्वेस्ट करते जाएंगे और उससे हम पैसा बनाएंगे। So I think I'll skip this part for now. Classification of mutual funds हम next session में पढ़ लेंगे, ठीक है। I'll just tell you 2-3 चीजें और यहाँ पे, ठीक है। तो कितना रिटर्न एक गुड रिटर्न होता है? So anything which is able to beat the rate of inflation, तो anything that is able to beat the inflation rate, तो आपने अगर 8% बनाया और इन्फ्लेशन 6% है, you are good। आपने 6% इन्फ्लेशन पे अगर 10% का रिटर्न बनाया, यू आर गुड। आपने 6% इन्फ्लेशन पे 15% का रिटर्न बनाया, वेरी वेरी गुड। राकेश झुंझुनवाला साहब का इंटरव्यू देखिए, वो कहते हैं इफ यू आर एनीवेयर यू आर मेकिंग मोर देन 15 और 15%, यू आर किंग। और अब आज जब सीखने के बाद आप जाओगे, आपको 50 लोग बोलेंगे अरे 25%, 30%, 50%। हमने ये समझना है, हमने हाई रिटर्न हाई रिस्क नहीं देखना है। वी वांट कि एक गार्डेड रिस्क पे हम बहुत अच्छा रिटर्न बना पाए, है ना। हम टाइम को अपना फ्रेंड बनाएंगे। बहुत ज्यादा हाई रिटर्न चेस करने के चक्कर में हमने रूल ऑफ इन्वेस्टिंग ब्रेक नहीं करना है। वी डोंट वांट टू इरोड अवर कैपिटल। सो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऐसा पैसा जो हमें अगले 5 साल में चाहिए, उसे हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोना पुट इन द स्टॉक मार्केट। ये हम जाएंगे एफडी की तरफ, ये हम जाएंगे डेट फंड की तरफ, ठीक है। क्योंकि मार्केट इज नेवर लीनियर, इट इज ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी हम नहीं चाहते। जो हमारे नियर टर्म गोल्स के लिए पैसा चाहिए उसको हम या तो एफडी में रखेंगे, डेट फंड्स हम अगली क्लास में सीखेंगे। और जो गोल हमारा 5 साल से दूर है उसके लिए हम इक्विटी इन्वेस्टिंग करेंगे या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने रिटर्न्स बनाए हैं। तो वॉरेन बफेट के ऑलमोस्ट अभी तक का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है समवेयर अराउंड 24%। रामदेव अग्रवाल का कहीं पे मैं देख रहा था, ही इज द चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न बनाया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना कि इस हिसाब से उनका कैपिटल कितने साल में डबल हो रहा है, ठीक है। फॉर लास्ट 6 years दैट आई हैव बीन इन्वेस्टिंग, आई वॉज एबल टू जनरेट अराउंड 25% के आसपास का रिटर्न। अगेन आई विल से आई वाज लकी बिकॉज ऑफ कोविड। इतना हाई रिटर्न, मैं इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। तो प्रोबेबली आई वाज जस्ट लकी बिकॉज कोविड के टाइम पे आई डिड बाय वेरी चीप स्टॉक्स एंड दैट इज व्हाई आई डिड मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट दिस समवेयर आई हैड जनरेटेड। बट मैंने क्या बोला, रेस मेरे से नहीं, रेस मेरे किसी और इन्वेस्टर से नहीं, मेरी रेस खुद से है। मेरी रेस बस इन्फ्लेशन से है। इन्फ्लेशन को मैंने बीट कर दिया, आई एम वेरी गुड। इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 12% कमाया और मैंने अगर 18 बनाया तो मैं बहुत बड़ा महान हूँ या आप छोटे हैं, ऐसा नहीं है। या अगर मैंने 12 बनाया, जो भी वॉट एवर सिनेरियो इज, प्लीज डोंट फील दैट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि मेरा कैपिटल धीरे धीरे करके बढ़ता रहे, बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप अगर सोच रहे हो कि इतना आसान है सब कुछ, आप बोल रहे हो, यू आर सेइंग इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, सो व्हाई आर पीपल लूजिंग मनी इन दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? Before telling you why people are losing money, let us tell you about prerequisites for investing. तो हमने जब इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो ये 3 चीजें हमने अपने पास रखनी है। What these things are? These are very 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 important. Trust me, अगर ये नहीं कर रहे हो, फंसोगे किसी ना किसी दिन, उस दिन मुझे याद करोगे and then you will say that okay, probably I should have listened to what you had said. First is term insurance. Now what is term insurance is, I'll tell you, ठीक है। 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो एक इंश्योरेंस होता है, चलो इंश्योरेंस सीखते हैं थोड़ा सा, अगेन हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान और दूसरा होता है यूलिप। व्हाट इज यूलिप? यूनिट
लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये वो प्लान है जो आपको बहुत से लोग बेच के गए हैं। अच्छा है बुरा है, अगेन इट्स अप टू यू टू डिसाइड, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आई पर्सनली डोंट लाइक यूलिप्स बिकॉज इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स कर देते हैं। और मोस्टली इन यूलिप्स में क्या होता है, जैसे आपको कैसे बेचते हैं ये बताता हूँ, सो दैट आपको आज अपने घर में जाके किसी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ना किसी को ये पकड़ाया हुआ होगा आपके आसपास में, रिलेटिव्स में। ठीक है, यूलिप क्या होता है कि आप अगर आज कुछ बाय करना चाहते हो तो से आपका एक प्रीमियम बोलेगा वो, ठीक है, और 60 ईयर्स की एज में या 55 या कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ एज, ठीक है, वो बोलेगा कि अगर आप इफ यू डाई you will get premium amount. If you don't die, do not die, then you will get say a 1 CR, say a 50 lakh, say a 75 lakh। और जिस दिन आप ये देख लोगे, और टर्म प्लान में क्या होता है, यू डाई यू गेट मनी, जो प्रीमियम आपका रहेगा 1 करोड़ 2 करोड़ कितना जो भी आपने इंश्योरेंस लिया है। इफ यू डू नॉट डाई देन नो, यू वोंट गेट एनी मनी, नो मनी। तो अब फॉर अ कॉमन पर्सन लाइक मी जिसने आज तक इन्वेस्टिंग नहीं सीखी है, उसके लिए क्या होगा कि अरे यार यहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब ये प्लान अच्छा है मेरे लिए, बट माय डियर फ्रेंड इसका प्रीमियम इज वेरी हाई, प्रीमियम इज वेरी हाई, है ना। और कभी जब ये पैसा मिलता है इसका आप रिटर्न कैलकुलेट करके देखना 7% के आसपास से बियॉन्ड नहीं मिलता। और हमने आज क्या सीखा है कि हम अगर इंडेक्स फंड में पैसा वो लगा दें तो हमें 12% के आसपास मिल जाएगा, 14% में मिल सकता है, तो मैं 7% में क्यों खुश हो जाऊं? वो तो पैसिव वे था, पैसिव में वे में ही मैं 12 से 14% बना ले रहा हूं, तो 7% में मैं खुश नहीं होने वाला। मैं बोलूंगा कि ब्रो आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट इन दिस थिंग, आई विल इन्वेस्ट इन अ टर्म प्लान, क्योंकि उसका प्रीमियम कम है। और ये बेचते क्यों है आपको? क्योंकि इसमें कमीशन बहुत बढ़िया होता है। तो जो कोई XYZ इंश्योरेंस कंपनी वाले जो बहुत फेमस है, जिसका नाम XYZ से शुरू होता है, ठीक है, वो आपको आते हैं, वो आपको बोलते हैं कि नहीं आपका इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, आपके माथे पे चढ़ जाएंगे इंश्योरेंस लेना, इंश्योरेंस लेना है। वाई? बिकॉज उनका एक टारगेट है, उनको कमीशन मिलता है, नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट देम, बट आप टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस में ये करेंगे। और यहाँ जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इज क्लियर? वहां पे हम 14% बनाएंगे और इसको हम ये जो रिटर्न इन लोग दे रहे हैं उसको आराम से बीट कर देंगे। क्लियर? तो कितने का इंश्योरेंस बाई करना चाहिए? 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। से मेरी इनकम अगर आज 1 लाख रुपीस पर मंथ है तो मैंने साल का कितना कमाया? साल का कितना कमाया? 20, है ना। तो अगर 1 लाख है तो 12 लाख के आसपास मैंने कमा लिया। अगर मेरा 12 लाख के आसपास का एनुअल इनकम है तो रफली 20 टाइम्स कितना हो गया उसका? 2 CR के आसपास, 2.5 CR के आसपास आपने एक टर्म प्लान बाई करना है, ठीक है। वाई इज दिस देयर? बिकॉज इतना सब हम कुछ कर रहे हैं, पैसे का क्या काम अगर वो अपनों के काम ना है। सो गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है और आपको अपने जो भी पैसा आपने लगाया था वो कंपाउंड नहीं हो पाया, एटलीस्ट योर फैमिली इज सिक्योर, यू डू लव योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर वाइफ, योर किड्स, योर पेरेंट्स, जो भी हैं, ठीक है। सो इफ यू लव देम प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, इट इज फॉर देयर सेफ्टी, ठीक है, एंड ये वेस्ट नहीं है पैसा। सेकेंड थिंग हमने बाय करना है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी एक थ्रेड डाला हुआ है, व्हाट द पॉइंट्स वी नीड टू सी, और इसी सीरीज में अगर आपको पसंद आएगा तो विल ड्रॉप इन अ video as well on dedicated video for how to buy a health insurance. Then another thing is called as emergency fund. इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? आपने कम से कम, मैंने 2 लिखा है बट एटलीस्ट 6 मंथ्स की सैलरी आपने रखनी है। 6 मंथ्स की सैलरी FD करके रखना है। आप बोलते हैं ना FD में रखने नहीं बोलते, FD में रखने नहीं बोलते। FD में ये पैसा सेफ रखना है, कहीं और नहीं लगाना है।
इसमें हम रिटर्न जनरेट नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा पैसा है कि अगर सपोज मेरी जॉब चली जाए, अगर सपोज मेरे घर में कोई कैलेमिटी आ जाए, अगर सपोज मुझे कहीं से भी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है मार्केट में, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पैसे को इमरजेंसी फंड, एज अ हॉलीडे फंड, एज अ अपॉर्चुनिटी फंड, कि स्टॉक मार्केट गिर गया, मेरे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से निकाल के डाल दिए, ये नहीं करना। अगर आपको कोई ट्रिप पे जाना है, पैसे नहीं है, स्टॉक मार्केट से आप निकालना नहीं चाहते पैसे, ये पैसा नहीं उठना चाहिए। ये पैसा आपका हमेशा हमेशा एफडी में पड़ा रहेगा। दिस विल हेल्प यू टू बाय टाइम, स्पेशली जब आप अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे, अपने जॉब के लिए वेट करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट टाइम जहाँ पे ये पैसा आपके लिए काम आएगा। अगर आपको 1 या 2 महीने का ब्रेक लेना है तो भी आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए काम आएगा। सो प्लीज 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 ये 3 चीजें आपने कवर करनी है: टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन पैसा कहाँ डूबता है, ये 6 चीजें मैं अभी आपको डिटेल में नहीं सिखाने वाला, बट प्लीज ये नहीं करना, ये बात समझ जाओ। अगर आपने समझ लिया तो पैसे यहाँ पे आपके नहीं उड़ने वाले। बाकी आपको बहुत लोग आएंगे जो बोलेंगे कि यहाँ पे हमने करोड़ों बनाए, यहाँ पे लाखों बनाए, बट हम यहाँ पे पैसा डुबा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। पैसा हमें जीरो हो सकता है तो भाई क्यों जाना है, क्यों अपने इतना हाई रिस्क लेना है। अगेन दिस इज माई अप्रोच, आपको अगर रिस्क लेना है ले लो, अगर किसी का डूब जाए तो समझ लेना। करेंसी, कमोडिटी, ये सारी चीजें हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेबी का जो लास्ट डेटा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब सीख करना चालू करोगे, बहुत लोग बोलेंगे ऑप्शंस में बहुत पैसा बनता है, ये होता है वो होता है। 90% जो लोग हैं वो लॉस मेकिंग है। 90% भाई, इससे ज्यादा तो तुम नीट क्लियर करने के चांसेस तुम्हारे एग्जाम देके नीट क्लियर करने के चांसेस ज्यादा है। सो प्लीज, जहाँ इतना हाई रेट है लॉस मेकिंग का, प्लीज डोंट जंप इनटू इट। आजकल तो वो एडवाइजरी भी देते हैं यार, जब आप कोई ऐप खोलते हो ना, तो उसमें पहले एडवाइजरी आती है कि ये सब नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मार्जिन, मार्जिन लेना, लेवरेज लेना, कि आप जब स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलोगे, डीमैट अकाउंट बोलते हैं उसको, तो जब डीमैट अकाउंट आप ओपन करेंगे उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल कि सर आप ट्रेड कर लीजिए, हम आपको पैसा देते हैं, लोन देते हैं, मार्जिन देते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने नहीं करनी है। इंट्राडे, सुबह खरीदा शाम को बेचा, अभी खरीदा 2 घंटे बाद बेचा, ये किया वो किया, इसमें भी पैसे डूबने के चांसेस है, तो भी हम ये नहीं करने वाले। छठी चीज होती है कि रैंडम स्टॉक टिप्स, कि आज तन्मय सर ने बोल दिया अपने चैनल पे, या कोई XYZ पर्सन ने जो प्रॉफिट बना रहा है उसने बोल दिया तो ले लिया, या बस में किसी ने बोल दिया, मेरे वर्क प्लेस में किसी ने बोल दिया कि उसको ये स्टॉक टिप मिली है। नेवर वर्क ऑन दिस। टिप्स आर फॉर बेगर्स। ठीक है, वी आर नॉट बेगर्स, वी डोंट वांट एनी टिप, वी लर्न हाउ टू एनालाइज एंड यूज आवर ओन विजडम टू डू दैट। ठीक है। अदर वेज टू लूज मनी आर पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स क्या होता है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं इनमें तगड़ा मैनिपुलेशन चलता है, और आप जाके सोचते हो कि 5 रुपए का स्टॉक लूंगा, ये 10 रुपए का हो जाएगा, मैं लखपति बन जाऊंगा। ठीक है। द फैक्ट इज कि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अगर आप सोचो कि 2 फोन देखते हैं, एक आईफोन है और एक कोई एकदम लोकल चाइनीज कंपनी वाला फोन है, तो चाइनीज कंपनी का फोन सस्ता क्यों है? आप ये कहते हैं ना, चल गया तो चांद तक नहीं तो रात तक, है ना। तो वैसे ही फंडा यहाँ पे भी है। ये छोटे छोटे स्टॉक्स कब डूब जाएंगे, कब कोई मैनिपुलेशन कर लेगा, कब क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता। सो प्लीज डू नॉट गो एंड बाई दो छोटे छोटे स्टॉक्स। आपको ये लग रहा है कि मैं इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लूंगा, कि 1 रुपए का है तो मैं इसको 1 लाख स्टॉक ले लूंगा, बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये कंपनी जीरो भी हो जाती है, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट भी हो जाती है, आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अगेन ये हैक मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूँ। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो म्यूचुअल फंड में बताऊंगा उसमें आपको ये हैक बताऊंगा, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड का हैक, जहाँ पे हम पैसा कैसे बना पाते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कैसे उससे हम पैसा बचा सकते हैं, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। फिर ये एक मीम कहीं पे पहले आया हुआ था, बहुत फेमस था, क्या कहाँ सेविंग का क्या करते हो? बोले इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ इन्वेस्ट करते हो? तो बोले ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। ब्लू चिप मतलब जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नॉन कंपनीज हैं। तो बोले वो दुनिया को बताने के लिए है, असली में कहाँ इन्वेस्ट करते हो? बोले डॉज कॉइन, बिटकॉइन, यस बैंक, ये वो। अगेन नॉट, नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट एनीवन हु डू दिस, बट पैसा डूबने के चांसेस हैं भाई, अच्छे समझ के करो जो भी कर रहे हो। ठीक है। देन
एक एक तरीका होता है कि आज मैंने ये बोला, कल इसने ये बोला, कल XYZ ट्विटर पे इसने बोला, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बोला, ऐसे करते करते स्टॉक ऐड करना चालू करे, 100 से ऊपर स्टॉक हो गए। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, आप इंडेक्स से बड़ा एक इंडेक्स बन गया, XYZ आपके नाम का एक इंडेक्स बना लो आपने। तो बेसिकली आपने अपने पोर्टफोलियो में डायरिया कर दिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेते लेते रिटर्न्स नहीं आएंगे आपके पास, विनर्स भी होंगे लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ लूजर्स भी होंगे, वो एवरेज आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्टॉक में देखो, एक मेरी एक सेइंग है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो है दोज आर लाइक योर किड्स, उतने ही करो जितने तुम संभाल पाओ, ठीक है। तो अगर आप 10 बच्चे संभाल सकते हो, 15 बच्चे संभाल सकते हो, क्योंकि इन स्टॉक्स को आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा, इनके कॉन कॉल्स पढ़ने पड़ेंगे, इनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि कब इनको बाई करना है, कब इनको सेल करना है। तो इतने सारे स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 के बियॉन्ड हमारे लिए बहुत इंपॉसिबल है पढ़ना। तो फिर ये है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाओ, उनको संभालने दो, खुद से मत करो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी रखते हैं, आई थिंक सेशन बहुत हैवी हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आई विल टेल यू सबसे शुरू में कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जो मैंने बताया वो, तो कहाँ अकाउंट खोलते हैं, कैसे अकाउंट खोलते हैं, कौन सा अकाउंट बेटर होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपन उसको चालू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कुछ कुछ मनी हैक्स हम सीखेंगे, FD से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, हमने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो सीखेंगे। सो दिस इज समथिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इफ यू डू लाइक इट, डू कमेंट ऑन इट। आई नो बहुत सारे जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये शायद एक रिविजन है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज़ वीडियो बनाओ। एंड बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स इन जून, MCH का जो एग्ज़ाम था, उसके बाद आई एम वर्किंग ऑन सम लॉट्स ऑफ अदर कमिटमेंट्स एज वेल, सो बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था। अब मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ कुछ, स्पेशली जो पहला वाला जो नॉलेज था, जिनको रिवाइज करना था, आधा छूट गया था, आई ट्राई टू कवर दोज थिंग्स अगेन, उसको रीब्रश करेंगे हम। और जो एक नया सीरीज चालू किया है, आदित्य शाह भी हैं उसमें, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर किया था, जो सेक्टर स्पेसिफिक कुछ स्पेसेस जो हम करते हैं ट्विटर पे, जो हमको फॉलो करते हैं वो जानते हैं, और उस बेसिस पे हम कुछ बेसिक्स, यानी जिनका ये बेसिक वाला पार्ट पहले उन्होंने क्लियर कर लिया था, और जो अब आज स्टॉक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी सेक्टर को कैसे पढ़ना है, उनका बिजनेस मॉडल कैसे समझना है, उनकी बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो वो वाला पार्ट प्लीज़ वहाँ पे आप उसको फॉलो करते रहिएगा। ये वाला पार्ट इज जस्ट फॉर द बिगिनर पार्ट। I hope you do like it. Thank you so much for watching until the end, and I wish you all happy compounding. See you in the next video. Bye bye.